نہیں ہے. اس میں سے لوجک ہے, مرتد کو مارنے میں لوجک ہے, کیونکہ ان کی گندگیاں بتاتے لوگوں کو. بھائی آپ اسلام کو گندگی جب بتاؤ گے جب کوئی ریلیجن والے ہوگے تب نا. آپ تو ناستک ہو نا, آپ تو گاڈ پہ تو وشواس نہیں رکھتے. یہ نیا لے کے آئے, یہ نیا لے کے آئے. کیا دھرم ہے آپ کا, کیا دھرم آپ کا بتائیے. اچھا ایک سوال, ارے رکو یار, ایک سوال کرتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھرم مانو گے تبھی آپ کو صحیح اور غلط, اچھا اور برا پتا چلے گا؟ نہیں, ہمارا یہ سوال نہیں ہے. ہمارا سوال ہے کہ کبھی سے آپ لوگ اسلام میں گندگی کے بارے میں بتا رہے ہو, تو آپ ہی بتا دیجئے کون سا دھرم ہے کہ جس میں گندگی نہیں ہے, وہی فالو کر لیا جائے. نہیں, ابھی آپ نے یہ کہا, ارے سنو, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہے کہ آپ چونکہ کوئی دھرم کو مانتے, کچھ نہیں گندگی ہے. ایک منٹ مس اینجل جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کوئی دھرم کو نہیں مانتے ہو, آپ کیسے ثابت کرو گے اس میں گندگی ہے؟ یہی بات کیا تھا نا آپ نے, ہے نا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ ہر چیز جو ہے اچھی اور بری جو آپ کو لگتی ہے وہ دھرم کی یا آپ کا جو مذہب ہے اس کی وجہ سے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے, اچھی ہے, بری ہے؟ دیکھیے کچھ تو چیزیں ہیں کہ دھرم سے پتہ چلتی ہے کہ کیا اچھی ہے کیا بری ہے. کچھ چیزیں ہیں جنرل نالج ہے, سائنس ہے. اچھا, مطلب آپ کو, مطلب کئی جگہ پہ آپ کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے نا؟ دیکھیے اب آپ بتائیے, دنیاوی جو بھی مسئلے ہوں گے اس میں دھرم سے کیا لینا دینا ہے, آپ بتائیے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے نا کہ ایک انسان جو ہے اپنی پوری لائف مذہب کے حساب سے جائے. اس کا مذہب ہے کہ وہ فیکٹری بنانے کے بارے میں اس کو تھیوری بتاتا ہے, آپ بتائیے نا. ارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک منٹ, ہمارا مذہب تو نہیں بتاتا ہے. میں کھانے کے حلال حرام کے بارے میں کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ کا مذہب ہی بتاتا ہے نا. ہاں ہے نا, ادھر دماغ نہیں چلاتے ہو نا. ہاں تو میڈیکل سائنس آپ کو معلوم ہوگی کہ جو خون جم جاتا ہے گوشت میں, وہ جو ہے کھانے پر اس میں انرجی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے. حلال حرام جو کرتے ہو, حلال حرام اور وہ پاک ناپاک, وہ آپ کے مذہب کی وجہ سے کرتے ہو نا. جی. نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا نا آپ کو کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. نہیں, دیکھیں ناپاک اور پاک کی دوسری بھاشا ہے, دوسری بات ہے. یہ مذہب سے معلوم پڑتا ہے کوئی چیز پاک ہے ناپاک ہے, کہ تمہاری عقل سے معلوم پڑتا ہے؟ عقل سے بھی معلوم پڑتا ہے, مذہب سے بھی معلوم پڑتا ہے. تم عقل سے معلوم کرتے ہو یا مذہب سے معلوم کرتے ہو؟ عقل سے معلوم کرتے ہیں. یعنی مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاک ناپاک میں, کھانے کی چیز میں؟ پاک ناپاک دنیاوی ہے, الگ ہے, اور پاک ناپاک دوسری چیز ہے. تو رسول اللہ نے حلال حرام جو ہے, حلال حرام پاک ناپاک, یہ رسول اللہ نے پھر کیوں بتایا کہ یہ چیز پاک ہے یہ چیز ناپاک ہے, سور کا گوشت حرام ہے ناپاک ہے, یہ رسول اللہ نے کیوں بتایا؟ میں وہی چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ حلال حرام الگ ہے, پاک ناپاک الگ ہے. اس کو دونوں مکسر مت کریے. جیسے اگر ہاتھ میں گندگی دیکھیے, سنیے ہماری بات, اگر ہمارے پیٹ میں ہاتھ میں پاک ناپاک, اچھا ایک منٹ, چلو حلال حرام کے اس پہ سے کرتے ہو, ٹھیک ہے. گو کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ یار کیسی بات کر رہے ہو یار, فالتو نہیں, بات کر رہے ہو. فالتو نہیں, ابھی پتا چلے گا. گو کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ گو کھانا حرام حلال کی بات نہیں ہے, یہ ناپاک چیز ہے. تو حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. حلال حرام کے اس میں نہیں آتا ہے. ایک خون آپ کو بتا دیا حرام حلال میں آتا ہے. ایک منٹ, گو کھانا, یہ سنو, یہ گو جو ہے وہ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے؟ یہ ناپاک چیز ہے. ارے لیکن کھانے میں حلال حرام ہوتا نا بھائی. سور کا گوشت جو ہے یہ کھانا حرام ہے. ہاں, بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے. تو کون بولا تھا آپ کو کھانے میں حلال حرام ہوتا ہے نا؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں بولیے. ہاں, میں کہہ رہا ہوں جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے نا؟ تو اس طریقے سے مجھے بتائیے, گو کھانا آپ کے لیے حلال ہے کیا حرام ہے؟ حرام ہے. ابھی آئے نا, حرام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ گو کھانا حرام ہے, حلال حرام بتاتے ہیں مذہب نے, تو آپ کو نہیں معلوم پڑے گا.
देखिए फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भटक कि हमने कहा कि अकल से भी अकल है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि हलाल जो नहीं, सुनो सुनो अच्छा नहीं सुनो, अरे सुनो नहीं, मेरी बात सुनो, फंस गए तो अभी कह रहे अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? बात कर रहे हैं, नाक कान क्यों दिया अल्लाह ताला ने? सुनने की शक्ति क्यों दिया? देखने की शक्ति क्यों दिया? तो फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से, ठीक है? तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए, अच्छा, रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए, दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब लोग जानते हैं। बताया ना, जो नहीं धर्म को मानता है वो भी नापाक चीज नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या अपनी अकल लगाते? इंशाल्लाह खाते। गू क्यों हलाल करता आप बताइए? क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। आईब्रो बनाना अगर हराम, हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत अनलॉजिक है ना? अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता तो आप खाते या नहीं खाते? कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, न रसूल की प्रॉब्लम है, साहिल भाई की प्रॉब्लम नहीं है। पेशाब मुबारक जरा पूछो ना, रसूलुल्लाह की पेशाब मुबारक समझ रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ, अच्छा रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है क्या नहीं है? आपसे जब बात होगी पहले आप वहदानियत को, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, रिलीजन को आप गॉड के जब गॉड को नहीं मानेंगे तो आपसे हमसे 6 रकात नमाज, इस पे बात नहीं होगी। जो है मान ले कलमा पढ़ ले, आपसे पहले जब भी बात होगी तब पहले गॉड पे बात होगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मान लिया। अब बताइए कि रसूल मुबारक का पेशाब जो है वो मुबारक है क्या नहीं है? क्या रसूल पाक का पेशाब? नहीं, आपने कलमा पढ़ा? हाँ पढ़ लिया। मुसलमान हो गए? हो गया। मुसलमान हो गए ना? जी हो गया। कलमा रसूल का पढ़ा है ना? अरे अभी पढ़ा ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। हिंदू में तर्जुमा, इसका हिंदी में तर्जुमा भी बता दीजिए आप। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी मुझे ये बताइए, मैं मुसलमान। आप पूछिए। आप मुसलमान हो गए, आप पूछिए। मोहम्मद कम से कम आप कलमा पढ़ लिए, हमारे तौफीक से
कम से कम इतना अच्छा हुआ। हाँ, आपको जन्नत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी ये बताइए, रसूल पाक का पेशाब मुबारक है या नहीं है? हाँ है। पेशाब पाक है रसूलुल्लाह का? अरे पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है? ये हमको हदीस नहीं मालूम है। अभी बता देंगे, आपके मौलवी हजरात भी बोलते हैं रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो पाक है। भाई अब वो मौलवी हजरात से पूछिए, हदीस उनसे मांगिए, नहीं हदीस मांगिए। अरे ऑथेंटिक हदीस ये लो, मैं आपके सामने रख देता हूं। बुखारी की एक हदीस है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक उनकी खादिमा ने पेशाब मुबारक पी लिया तो नबी पाक ने कहा जहन्नम की आग अब इनको टच नहीं कर सकती। आप गलत हदीस नहीं, हदीस आप जो है सनद सही नहीं बता रहे हैं। आप बुखारी को या मुस्लिम को कोई भी सनद के साथ हदीस बताइए कि ये सनद है, हदीस नंबर है, तब हम आपको जो है सुनेंगे ये बात। हदीस बुखारी में लिखा ये नहीं, ऐसा नहीं। ये लो यार, हेलो, हाँ बोलिए। अरे रुको, ये लो, ये देखो कितनी सारी हदीस है इसके ऊपर। नहीं एक हदीस आप पढ़िए, सारी नहीं। अरे ये लो ना यार, ये लो, ये देखिए, ये देखो, इमाम सुयूती की किताब है। देखो, इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट उन्होंने नरेट किया है। कौन सी किताब? अल खसाइस अल कुबरा, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 253। किधर से छपी है? स्यूती साहब की किताब को हमको क्या करना है, आप बताइए। स्यूती साहब की किताब से हमको क्या करना है? सनद पहुंचाइए ना आप। ओ जनाब, ये देखो, ये सनद लो, इसमें सनद भी दी हुई है। ये देखो, आप बुखारी जब तक बता रहे थे, आप स्यूती साहब की किताब पेश कर रहे हैं। क्यों सुयूती में क्या अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है? नहीं, हदीस तो आप भी जानते हैं कई लाख है, सब जईफ है, मौकूफ ये है। अरे मेरे भाई, ये है, आपको मालूम है ये ज़ईफ हदीस। अरे मेरे भाई चुपचाप बैठो थोड़ा। ये हदीस जो आपको बता रहे हैं ये सही हदीस है? गलत हदीस है वो। साबित करो गलत हदीस। हाँ वो गलत हदीस है। साबित ये करना है कि आपने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है। क्या कोई सहाबी से आपको साबित है? ये है ना, साबित है ना, सहाबी से तो है। ये देखो ना, बात, ये देखो। आप अभी बुखारी की आप बता रहे थे हदीस, आप स्यूती साहब की किताब लेके चले आए। नहीं है क्या साहिल भाई उनको पूछो मुबारक नहीं है क्या पेशाब? वो तो पूछो हाँ या ना, तो बोलो है कि नहीं है मुबारक। पेशाब मुबारक बोल दिया, पाक है क्या नहीं है वो नहीं पता है उनको। देखो भाई, हमको हदीस नहीं मालूम है तो हम कैसे कहें? जो मालूम रहेगा वही बोलेंगे, जो नहीं मालूम होगा। भाई आपको हदीस बताई जा रही है, आप मानने के लिए नहीं है। अरे भाई, हदीस तो समझना बहुत कठिन है, कुरान समझ लेंगे, लेकिन हदीस बेसनद वाली बहुत ज्यादा बाजार में है साहिल भाई। ये बेसनद वाली नहीं है ना, ये ऑथेंटिक हदीस है ना भाई। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हैं ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताओ, अगर ये हदीस ऑथेंटिक है तो आप पियोगे रसूलुल्लाह का पेशाब? नहीं, मतलब हदीस ऑथेंटिक है तो भी आप रसूलुल्लाह का पेशाब नहीं पियोगे? वही बात, ऐसा कैसे है कि अल्लाह दो है, हदीस आप ले दे देंगे? हदीस हो ही नहीं सकती है ये। नहीं, हदीस हो ही नहीं सकती है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको, आज तुमको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ। यार रसूल का पेशाब मुबारक ऊपर उसकी चला लो ना, वो इंजीनियर मिर्जा नीचे, ये तीसरे नंबर पे, ये बताएगा मेरे ख्याल में। एक पूरा उसका पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। इसको रोके, जरा पॉज करें, इसको पॉज करें। हाँ जी सर, ये पाक है कि नहीं है? हाँ जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ओनली टू साहब जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अब पाक हुआ कि नहीं हुआ?
क्या आप क्या बता रहे हैं, बताइए। अरे ये सुने नहीं क्या? रिवाइंड करके दोबारा चलाएं सर, रिवाइंड किसका करके सुनना है बताइए आप। अरे कान खोल के सुनो जरा, ये सुनो। किसका बताइए, ये कौन बोल रहा है? और आपका खून मुबारक पाक है। रिवाइंड करें शुरू से। मैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। सुने आपने? कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारे मौलवी हजरात बोल रहे भाई। वो मौलवी के पाबंद हैं, मैं मौलवी का कलमा पढ़ा हूँ। तो तुमको जब हदीस बताई जा रही है तो तुम हदीस भी नहीं सुन रहे हो। हदीस कैसे? अच्छा हदीस लाखों झूठी हदीस है, हदीस लाखों झूठी हदीस है। मेरे शेयर करें स्क्रीन। मौलवी का मैं कलमा पढ़ा हूँ कि मौलवी जो कह दिया वो मान लेंगे। कोई मसला नहीं है। देखें ये इस्लाम क्यों है जहाँ पे आप लोग जो है सवाल करते हैं और आपके स्कॉलर्स और उलमा आपको जवाब देते हैं। ये हनफी फिक के मुताबिक जवाब दिया हुआ है, ठीक है, फिक हनफिया, ठीक है। शेख मोहम्मद तोसीर साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है इसी हदीस के ऊपर। वो बता रहे हैं कि फलाने फलाने इमाम ने इसको नरेट किया है एंड जो रिजाल हैं इसके सही हैं और सही उल बुखारी के रिजाल से हैं एंड दिस इज ए सही हदीस। जी सर, आपको अगर नहीं पता तो सर इसमें किसी और का क्या कसूर है? हाँ वही, ये इस्लाम Q&A का आर्टिकल है और जवाब इनके ही इमामों ने दिए। जी सर बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको अगर नहीं पता है सिर्फ इतना बोल दो कि अगर, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने उलमा है वो इस बात को मानते हैं, हम आपको पूरे वीडियोस बता सकते हैं, आपको हदीसें बताए हैं। अगर मान लो कि हदीस सही है तो क्या तुम रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे या नहीं पियोगे? भाई साहिल बाबू वो मसला है ही नहीं, जब रसूलुल्लाह दुनिया की जिंदगी में है नहीं तो इसका मसला खत्म। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो पीते उनका पेशाब? फिर होते कहीं क्यों, जब आज हम 2022 में हैं। अगर होते तो पीते या नहीं पीते? क्यों होते, दुनिया प्लास्टिक की होती। देखिए मतलब ये इनका दिल गवारा ही नहीं कर रहा है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पाक भी हो जाएगा तो ये पी नहीं सकते, इनको अच्छे से मालूम है। समझ रहे एडम? ये बस एक बस बहाना है, असल में इनके अंदर की गहराई अभी जाग चुकी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे यार हुआ है, तुम्हारे मौलवी हजरात मानते, लिखा हुआ है किताबों में। भाई आप जाके सर्च करो यूट्यूब पे, नबी का पेशाब और संडास मुबारक जाके आप सर्च करो यूट्यूब पे, उसके बाद अब आप बात करो। बिल्कुल, चलिए हम